हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईएससी के कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिस इज आस्क्ड इन 2000। A sample of sand above water table was found to have a natural moisture content of 15% and a unit weight of 18.84 kilonewton per meter square. Laboratory test on a dried sample indicated values of 0.5 and 0.85 for minimum and maximum void ratio respectively. For densest and loosest state, calculate degree of saturation and the relative density. Assume Z equals to 2.65. This is for 10 mark question. हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना है एंड रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, सो और गिवन क्या क्या है हमारे पास? वाटर कंटेंट इज गिवन 15%, राइट। सो यूनिट वेट इज गिवन 18.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉइड रेशियो एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ई मैक्स एंड ई मिनिमम is also given. Emax is 0.85 and minimum is 0.5. So since we know the formula Wg equals to ESR, okay, from gamma we will calculate the value of void ratio E. Since gamma is 18.84, okay, we know that gamma total density is equals to G gamma W 1 plus W divided by 1 plus E. Gamma equals to G gamma W 1 plus W by 1 plus E. So from here 18.84 equals to 2.65. Unit weight of water is 9.81. Water content is 15%, which is equals to 0.15 1 plus E. So from here we get the value of E as 0.5868. Okay, so इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0.15 into 2.65 equals to 0.5868 SR. Degree of saturation S is equals to 0.6774, or from in percentage you can write this as 67.74%. Okay, and next हमको क्या फाइंड करनी है? रिलेटिव डेंसिटी ID. ID equals to Emax minus E by Emax minus E minimum. ओके, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो आ जाएगी 0.85 माइनस 0.5868 बाय 0.85 माइनस 0.5। सो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.7519, और यू कैन से एट 75.19%. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। Degree of saturation is 67.74% and relative density is 75.19%. Okay. Now, question number 2. What will be the ratio of average permeability in the horizontal direction to that in the vertical direction for soil deposits consisting of 3 horizontal layers if the thickness and permeability of the second layer are twice those of the first and those of the third layer twice those of the second? दिस इज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमको फाइंड करना है KH बाई KV फाइंड करना है, ठीक। सो हमको यहाँ पे गिवन क्या क्या है? 3 लेयर्स की हुई हैं हमारे पास, ठीक। सो थिकनेस H, परमेबिलिटी K ऑफ सेकेंड लेयर क्या है? ट्वाइस दोज ऑफ फर्स्ट 2H और 2K, एंड दोज ऑफ द थर्ड लेयर ट्वाइस ऑफ द सेकेंड। इसका ट्वाइस मतलब इसका 2 गुना, इतना ये हो जाएगा 4K। सो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमको पता है फॉर्मूले से। ओके, सो H इंटू K प्लस 2H इंटू 2K प्लस 4H इंटू 4K डिवाइड बाय टोटल हाइट H प्लस 2H प्लस 4H। Permeability in horizontal direction is equals to 4 4s are 16 plus 4 21 HK by 7H, which is equals to 3K. 3K is the permeability in horizontal direction. KV, permeability in vertical direction, is equals to plus 2H plus 4H divided by H by K plus 2H by 2K plus
4h/4k, ठीक। ये हो जाएगा 7h बाय, ये दिस कैंसिल हो जाएगा, h/k 3h/k, सो दिस विल कम आउट टू बी 7k/3। सो हमको रेशियो फाइंड करना है kh/kv इक्वल्स टू 3k/7k/3। सो ये हो जाएगा 9/7। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:7। ठीक, मैंने अपने जियोटेक का एक लेक्चर का वीडियो डाला है जिसमें पूरे फॉर्मूलेस मैंने कवर किए हैं इन ओनली 15 मिनट्स। सो आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला वहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी और वर्टिकल परमेबिलिटी का, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेटलमेंट ऑफ अ फुटिंग ऑफ विड्थ 1.2 meter with the following plate load test result for a sandy soil and clayey soil. Settlement of plate is 15 mm, width of the plate is 400 mm. This is asked for 10 marks. So हमको SF हमको फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट गिवन है 15 mm, width ऑफ प्लेट गिवन है 400 mm, width of the footing is 1.2 meter, or you can write this as 1200 mm. ठीक, सो फॉर अ सैंडी सॉइल वी नो द फॉर्मूला SF इक्वल्स टू SP BF इंटू BP प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय BP इंटू BF प्लस 0.3 होल का पावर स्क्वायर। इसमें जो भी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला मीटर के लिए है। तो सेटलमेंट ऑफ प्लेट कितना गिवन है, 0.015 in meter. Width of footing is 1.2 and width of plate is 0.4 plus 0.3 divided by 0.4 into 1.2 plus 0.3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 29.4 इंटू 10⁻³ मीटर, और यू कैन राइट दिस एज 29.4 mm। ठीक, तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग क्या हो जाएगी 29.4 mm। और क्लेई सॉइल जो SF/SP होता है वो होता है BF/BP। ठीक, तो विड्थ ऑफ फुटिंग क्या गिवन है 1.2, विड्थ ऑफ प्लेट क्या है 0.4 विच इज इक्वल्स टू 3। सो हमको सेटलमेंट ऑफ फुटिंग फाइंड करनी है 3 इंटू सेटलमेंट ऑफ प्लेट। Settlement of plate is 15 mm, so which is equals to 45 mm. Settlement of footing. So ये डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज होगा। फॉर सैंडी सॉइल के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्लेई सॉइल के लिए ये होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स। अ स्मूथ रिटेनिंग वॉल 6 मीटर हाई retains dry granular backfill weighing 16 kilonewton per meter cube to its level surface. The active thrust on the wall is 96 kilonewton per meter on the wall. What will be the total active thrust if the water table comes up to backfill surface? Take specific gravity of backfill is 2.65। ठीक, हाइट कितनी दी हुई है 6 मीटर, जी कितना दिया हुआ है 2.65, ड्राई डेंसिटी इज गिवन 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई ग्रैनुलर बैकफिल, सो ये ड्राई ग्रैनुलर बैकफिल मीनिंग ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगी 16। एक्टिव थ्रस्ट ऑन द वॉल इज 96 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक, सो सबमर्ज डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है G-1 इंटू गामा W बाय 1 प्लस ई और गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। ठीक है, सो यहाँ से हमारे को सबमर्ज डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले हमारे को ई पता करना पड़ेगा। सो ई कहाँ से आ जाएगा, ड्राई डेंसिटी से। ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या गिवन है 16 गिवन है। सो हमको ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, गामा W अपॉन 1 प्लस ई होता है। ठीक, विच इज इक्वल्स टू 16। जी कितना गिवन है 2.65, गामा W इज 9.81, 1 प्लस ई इक्वल्स टू 16। फ्रॉम दिस ई की वैल्यू आ जाएगी, ई विल कम आउट टू बी 0.625। ठीक, अब इस ई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 1.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.625। सो यहाँ से सबमर्ज डेंसिटी आ जाएगी। सबमर्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.962 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब हमारे को क्या फाइंड करना है, एक्टिव थ्रस्ट ऑन द वॉल फाइंड करना है। ठीक, व्हेन जब वाटर टेबल राइजेस टू द
बैकफिल सरफेस, वाटर टेबल जब सरफेस में आ जाएगा। गिवन क्या है, 96 हमारे पास गिवन है जब वो ड्राई डेंसिटी है। गिवन क्या है, के ए गिवन है जब वो ड्राई बैकफिल है। के ए गामा एच स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। एक्टिव थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर होता है हाफ। के ए हमारे को पता नहीं है, गामा ड्राई डेंसिटी ड्राई बैकफिल है तो ये 16 गिवन है, एच क्या है 6 है। सो एक्टिव थ्रस्ट के ए कितना गिवन है 96, हाफ ऑफ के ए इंटू 16 इंटू 6 स्क्वायर। सो यहाँ से के ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3। एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द टॉप ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, नाउ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द बेस ऑफ द वॉल, एट द बेस क्या हो जाएगा, एक्टिव विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के ए गामा सबमर्ज्ड इनटू एच स्क्वायर। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द बेस ऑफ द वॉल किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ के ए इंटू 1/3 इंटू गामा सबमर्ज्ड 9.962 इंटू एच स्क्वायर है 6 स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 236.352 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, वाटर टेबल जब ग्राउंड सरफेस में आ जाएगा। ठीक, सो ये 6 मीटर रिटेनिंग वॉल की हाइट है पर टोटल एक्टिव थ्रस्ट वाटर टेबल कम्स टू द बैकफिल सरफेस। ठीक, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दिस आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. Sample of a dry sand are to be tested in triaxial and direct shear test. In the triaxial test, this specimen fails when the major and minor principal stresses are 960 kN per meter square and 260 kN per meter square respectively. What shear strength would be expected in direct shear test when the normal stress is 230 kN per meter square? Okay, so हमको shear strength find करना है। ठीक, which is equals to 960, minor stress is 260. Okay, from the formula we know that sigma 1 equals to sigma 3 tan square 45 plus 5/2 plus 2c tan 45 plus 5/2, or you can write sigma 1 equals to sigma 3 1 plus sin phi by 1 minus sin phi plus 2c root of 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. ठीक, ये फॉर्मूला हमको पता है। ठीक, फॉर अ ड्राई सैंड c विल बी इक्वल्स टू 0। सैंड के लिए क्या हो जाता है, कोहेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन फाई। ठीक, सो फ्रॉम हेयर हमारे को गिवन है सिग्मा 1 और सिग्मा 3। सिग्मा 1 क्या गिवन है 960, सिग्मा 3 क्या गिवन है 260। सो विच विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाइव बाय 1 माइनस साइन फाइव। सो यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी 35.014 डिग्री। ठीक, सो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमको पता है फाइव। सो सी 0 हो जाएगा सैंड के लिए। सो टाउ हो जाएगा सिग्मा tan फाइव। ठीक, और सिग्मा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू कितने में पूछा है हमारे को। सो 230 इंटू tan फाइव 35.014। तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी 61.129 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।